from DW Instinct. The frequency bandwidth is up to 200 megahertz and the sampling rate is 1 gigasample per second per channel. Okay. This instrument has inbuilt. These are the 4 analog channels, 1, 2, 3, 4. This is a digital channel. This digital channel converts it into a MSO. So when you have some digital signals that you need to identify, so you have to connect these digital channels. So this is 16 digital channels. So you have to press this and this simply goes inside this little block. Okay. So now if you have some digital boards, FPGA, other kind of thing, clock signals. So if you want to identify those signals, so you have to use these kind of connectors. Okay. Okay. And there are some points, sometimes you need to use this connector as well. So how to use this connector with these logic channels? So you just connect this one. Okay. So this is a pin that goes inside this digital circuit. Going digital circuit. If you have some digital circuit, if you don't have, you don't need this. Logic analyzer we don't You need. don't need. I think in civil or in mechanical, people don't need. Don't need. logic We don't need. analyzers. Yes. So, but this is the advantage. If you want to have some digital signals on 0, 1 bit, those signals Okay. you can recognize with this. Okay. This bit will connect to signal. the circuit Yeah, directly. directly. Okay. We don't need that. We don't. We just need to Only the analog vibrations. vibrations. Yes. So this is the extra features. So I am keeping this separately since there is no need of this connector right now. This is basically called a logic analyzer. Yeah. So here is the power point. It's a 240 volt AC. So on it. So these are for this analog signals. Okay. Yeah. Analog signals. Yeah. Just slightly press and For 2 channels. clockwise, yes. So 2 channels. You can see all the 4 signals at a time. Okay. So for that you have to use 4 these analog channels. और जो पीछे उसको लगाने के लिए वो किस लिए है? कौन सा? इस तरह से यहाँ पे लगाने के लिए था। ये अगर फंक्शन जनरेटर्स का काम करते हैं इसके लिए, इसमें इनबिल्ट फंक्शन जनरेटर्स भी है. So now suppose you want to generate a square wave, say sinusoidal wave lamp of 5 volt, 10 volt peak to peak at different frequency level, let's say 1 kilohertz, 10 kilohertz. So you can generate the signals. They're as per already its- in the It's inbuilt. Yes. चारों ओर लगाना पड़ेगा। नहीं, अगर आप एक ही सिग्नल देख रहे हैं तो यू कैन यूज ओनली वन, एंड इफ यू वांट टू सी 4 signals at a time, so you can use all the 4 channels at a time.
तो मैं इसको 4 signal में 4 different type of signals. डिफरेंट टाइप ऑफ सिग्नल्स। ये सब क्या बस हम हाँ बताता हूँ मैं। एक्चुअली ये चारों इसलिए लगा दे रहा हूँ क्योंकि इसका चेकिंग भी हो जाएगा। हाँ, ठीक है। तो ये क्या है, ये डिफरेंट टाइप ऑफ कनेक्टर्स है, राइट। सपोज ये जो कनेक्टर्स है, अगर आपका पिन बड़ा है तो ये डायरेक्ट इसको आप लगाइए वो कनेक्ट हो जाएगा। हुक कर देना। हाँ, बट सपोज डिफरेंट काइंड ऑफ आपका है कोई कनेक्टर्स जिसमें ओनली पॉइंटेड है, अच्छा। तो ये पॉइंट डायरेक्ट उसमें चला जाएगा। ये आप इसको रिप्लेस कर देंगे या इसके साथ आप डायरेक्ट कर लेंगे। अच्छा। इसके यूज़ में दिखाता हूँ, इसे डिफरेंट किया, थोड़ा सा अलग किया। ठीक है। अच्छा नहीं, ये किसके लिए बताता हूँ मैं। ये एक्चुअली है समटाइम्स ना, कभी कभी सिग्नल एटेन्यूएट हो जाते हैं। सपोज आपका ये प्रोब है 1:10 या 1:100, मीन्स अगर आपको 100 वोल्ट मेजर करना है, ये तो 10 वोल्ट पिक टू पिक देगा। ना आपको कन्वर्ट करना है तो 1:10 रेशियो में कन्वर्ट करेगा ना, 10 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो उस टाइम में क्या होता है, सपोज यहाँ पे अपने सेटिंग्स करके रखा है 1:10, यहाँ पे 1:100 है, तो चेंज कर दिए तो बहुत समय एटेन्यूएशन का प्रॉब्लम आता है। सो यहाँ पे आप देखिए, देखते ये X1 है, ये X10 है। तो जब 1:10 करेंगे तो आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। जनरली 1:10 में ही रखते हैं। जो 100 बोले कहाँ पे, यहाँ पे 100 कर सकते हैं? नहीं, यहाँ पे 100 नहीं, यहाँ पे 100 कर सकते हैं। आपको 100 वोल्ट चाहिए क्योंकि ये पर डिविजन 1 वोल्ट 100 मिलीवोल्ट आप सेट कर सकते हैं डिफरेंट पे। तो जनरली लगता नहीं है, लेकिन जब आप हाई पे चले जाते हैं देन आपको हो सकता है कि यूज़ करना पड़े। ये ग्राउंड के लिए है, अच्छा। ठीक है। हमेशा आपको यूज़ करना है कभी भी सिग्नल को मेजर करने के लिए। तो इससे ये एटेन्यूएट करना रहता है प्रोब्स को। अभी मैं पीछे आ जाता हूँ। सो दीज आर फॉर फंक्शन जनरेटर्स। ये अगर आपको लैन के साथ या USB के साथ इसको कनेक्ट करना है तो उसको आप यूज़ कर सकते हैं। ये मास टेस्टिंग के लिए होता है, जो प्रोडक्शंस पे यूज़ करते हैं। पास फेल का होता है, नो गो एंड ये कैलिब्रेशंस के लिए यूज़ होता है। सो हमारा ये सब चीज़ का कोई काम नहीं है। वी कैन यूज़ ओनली दिस वन, जो आपको डेटा डायरेक्ट यूज़ कर शो करेंगे। शो करेंगे। और ऑलरेडी ये वाला मशीन कैलिब्रेटेड है। हाँ हाँ, लूज है ये। मतलब आ रहा है। स्टिक। तो अभी हमारा फंक्शन जनरेटर का कुछ काम नहीं है। आपका वाइब्रेशंस को वाला काम हाँ, करता है। vibration। वाइब्रेशंस आप जनरेट कर जनरेट सकते नहीं कर सकते हैं। वो वाइब्रेशन हम इम्पैक्ट करके करेंगे। इम्पैक्ट नहीं करते। तो Response वाइब्रेशन जो इम्पैक्ट करके करते हैं उसका अगर इलेक्ट्रिकल पैरामीटर सबके पास है और आप उसको देखना चाहते हैं कि एट व्हाट फ्रीक्वेंसी एट व्हाट वोल्टेज लेवल हो रहा है, तो अगर आपको पता है वो आप फंक्शन जनरेटर से जनरेट कर सकते हैं। लेकिन यू हैव टू हैव दोज पैरामीटर्स रेडी विद यू। तो यहाँ पे इनपुट देना होगा। तो आप देखिए ये जो चारों प्रोब्स है कनेक्ट हुए हैं। अभी चैनल 1 मीन्स ओनली चैनल 1 इज वर्किंग, इसलिए आपका येलो ये दिखा रहा है, राइट। अभी मैं कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे कि यहाँ पे कलर कोडिंग भी है। सो येलो अच्छा चैनल 1, चैनल 2 ऑन करते हैं, सो इट्स अ ब्लू वन, ओके। चैनल 3 सो पिंक वन, तो ऑल द 4 सिग्नल्स आप देखेंगे। अभी कोई सिग्नल दिया नहीं है इसके, ये नॉइज़ वगैरह आ रहे हैं ना। अभी फंक्शन समझते हैं जितने भी यहाँ पे
नॉब्स है, बटन्स है उनका। सो ये है चैनल 1 का। आपको अगर वोल्टेज स्केल पर डिविजन्स को चेंज करना है, मतलब अगर सपोज आपको ये पूरा जो स्केल है, ये पूरा स्केल में आपका 10 वोल्ट शो कर रहा है पिक टू पिक, राइट। तो इसका मतलब यहाँ पे कितना डिवीजन देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 1.25 वोल्ट पर डिवीजन से। तो यहाँ पे आप 500 मिली वोल्ट से अप टू 10 वोल्ट तक डिवीजन कर सकते हैं। तो 500 मिली वोल्ट, दैट मीन्स 5 वोल्ट पिक टू पिक, 5 × 8 4 वोल्ट पिक टू पिक ये मेज़र करेगा अगर आप 500 मिली वोल्ट पे रखते हैं। अगर 1 वोल्ट पर डिवीजन रखते हैं तो 8 वोल्ट, 1 × 8, तो 8 डिवीजन ही रहेगा। 8 डिवीजन ये आप ये फिक्स ये हमेशा 8 रहेगा। हाँ, इसको आप चेंज कर सकते हैं। और ये आपको कहाँ पे दिखाई देगा, कोई शेयर तो जब मैं इसको चेंज कर रहा हूँ, अब देखिए 1 मिली वोल्ट से स्टार्ट हो रहा है। दिस इज अ चैनल 1, 1 मिली वोल्ट पर डिविजन, 2 5 10 20 100 200, सो अप टू 10 वोल्ट तक ही जाएगा पर डिविजन, ठीक है, मैक्सिमम। तो इसका मतलब आप 80 वोल्ट पिक टू पिक इसमें मेजर कर सकते हैं। 8 में तो 10, 1 में 10, 80। हाँ, 80 वोल्ट पिक टू पिक, ठीक। सिमिलरली जब मैं 2 करूँगा तो 2 का इसमें दिखाएगा। अच्छा। तो इसको 2 को करने के लिए, राइट। सो इसी तरह इनका भी है। सेकेंड है ये पोजीशन चेंज करने के लिए, क्योंकि एक ही टाइप का सिग्नल रहेगा तो ओपन अप हो जाए तो आप आइडेंटिफाई नहीं करोगे, तो आप इससे पोजीशंस को 0 को ऊपर नीचे करके सबके लिए अलग अलग है। नाउ आते हैं टाइम स्केल को कैसे चेंज करेगा, जैसे वर्टिकल चेंजिंग। तो वर्टिकल के लिए ये वाला नॉब है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये चेंज हो रहा है माइक्रो सेकेंड पे, या फ्रीक्वेंसी अगर आप जो बोलेंगे, राइट। ये समझ नहीं है क्या करता है इसमें वर्टिकल। ये जो वर्टिकल स्केल, ये अभी तक था आपका हॉरिजॉन्टल स्केल, ना आपका वर्टिकल स्केल। वर्टिकल स्केल मतलब टाइम इक्वल्स टू 1/f फ्रीक्वेंसी। तो अगर फ्रीक्वेंसी सपोज आपको 10 मेगाहर्ट्ज चाहिए, तो इसका मतलब टाइम स्केल कितना होगा, 1/f 1/10 मेगाहर्ट्ज, जितना मिली सेकेंड होगा वो यहाँ पे चेंज होंगे। देखिए 1 नैनो सेकेंड, इट गोज अप टू 100 सेकेंड। इसका मतलब क्या, 100 सेकेंड्स में एक पूरा टाइम पीरियड पूरा कवर करना है, 100 सेकेंड। तो 100 सेकेंड काफ़ी स्लो आएगा। जनरली कोई भी सिग्नल्स मिली सेकेंड्स में, नैनो सेकेंड्स में, इसी में रहते हैं। तो ये आपको उतना ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसका हमारा ऑटो सेटअप है। अगर हम लोग ऑटो सेटअप देते हैं तो डायरेक्टली कैप्चर कर लेता है, ठीक है। हाँ, राइट। तो कभी भी ओके, और फंक्शन में बता देता हूँ। ये मेज़र का क्या है। अच्छा, इसको मैं चेंज करता हूँ। आ गया लेवल्स, जितने भी वेरिएबल वाला क्या था। वेरिएबल्स हम वेरी करेंगे जब ऊपर नीचे जाएंगे, मैं दिखाता हूँ, बताऊँगा। जब अभी सिलेक्ट करूँगा तो आएगा, देखिएगा ऐड मेजरमेंट्स। अभी मेरे को मेजरमेंट्स क्या क्या मैं मेज़र कर सकता हूँ, पिक टू पिक, टाइम फ्रीक्वेंसी, डिले, ये सब मैं चेंज कर सकता हूँ। ये वेरिएबल मतलब ये आप इसको वेरी कर रहे हो, आपको कौन सा चाहिए। सो नाउ पिक टू पिक, मैक्सिमम, मीन, एम्पलीट्यूड, हाई एम्पलीट्यूड, लो एम्पलीट्यूड, आरएमएस वैल्यू, ये सब आपको सिग्नल में क्या चाहिए वो आप आउटपुट ले सकते हैं। यहाँ पे 4 पैरामीटर्स आपको एक साथ दिखाएंगे। तो यू कैन सेलेक्ट व्हाट आर द पैरामीटर्स यू वांट टू सी इन द जाके रिमूव कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए कोई भी मेजरमेंट दिखाई नहीं दे रहा है। अच्छा, गेटिंग हो सकता है कि आपका फुल रिकॉर्ड करना है, बिटवीन द कर्सर्स आपको चाहिए, वो सब करने के लिए है। डिस्प्ले, हाँ, डिस्प्ले ऑल, अगर मैं डिस्प्ले ऑल कर दूंगा तो आपका जितने भी पैरामीटर्स हैं सब इसमें डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। ओके, स्टैटिस्टिक्स में आपका वो कितना आपका सैंपल रिकॉर्ड हुआ है,
कितना मैक्सिमम हुआ है, क्या मीन हुआ, वो सब उसमें रिकॉर्ड होते हैं। ठीक है, हाई लो क्या था? हाई को मतलब आपका वो एम्पलीट्यूड का हाई में कितना आएगा, लो में कितना आएगा, वो वैल्यू आपको दिखाएगा उस पर। ना कर्सर का काम क्या रहेगा? कर्सर मतलब आपको अगर सपोज यहाँ पे ये नॉइज़ है, हाँ। आपको ये मेज़र करना है, तो आप ये कर्सर सेलेक्ट कर लिए, राइट। यहाँ पे देखिए ये हो गया आपका हाँ, हॉरिजॉन्टल, और उसके बाद इसको अब इसको मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए डेल्टा, टाइम स्केल, एम्पलीट्यूड स्केल सभी आपका यहाँ पे डिफाइन हो जा रहा है, राइट। ये कर्सर पे गए तो ये इसका मतलब ये आपका वर्टिकल मेजर कैसे कर रहा है? यहाँ पे डायरेक्ट मेज़र करके दे दे रहा है। अच्छा, कर्सर दे देंगे तो यहाँ पे ये मेज़र कर देगा। तो हमें और ये पोजीशन फिर जरूरत नहीं पड़ेगा ना? ये नहीं सब? नहीं नहीं, आपको सेट कर लेना पड़ेगा। सपोज मेरे को यहाँ पे जाना है, अच्छा, वो पॉइंट, तो मैं ये पॉइंट पे सेलेक्ट कर दिया। जिस पॉइंट पे वो कर्सर रहेगा स्क्वायर वाला, वहाँ का वैल्यू वहाँ दिखाएगा। का वैल्यू दिखाएगा डेल्टा यहाँ वैल्यू। पे कहाँ यहाँ पे ये 1 है, हम्म, ये 2 है, ये जो वैल्यू आ रहा है हाँ। वो 1 का वैल्यू, ये 2 का 2 वैल्यू। का वैल्यू, 1 का वैल्यू, 2 का वैल्यू, और ये जो डेल्टा है दैट इज़ अ डिफरेंस। ये देखिए 46.9, 3.10, ये दोनों का डिफरेंस देखिए 50 हो जाएगा, राइट। ठीक है। ओके, नाउ एक्वायर में जाने की ज़रूरत है नहीं। जनरली एक्वायर में मैं बता रहा हूँ क्या होता है। सपोज आपका हाई फ्रीक्वेंसी, हाई रिजोल्यूशन का सिग्नल है, आपको डिटेक्ट नहीं हो पा रहा है, तो एक्वायर में जाएंगे तो ये सैम्पल मोड, डिफरेंट सैम्पल मोड है। तो ज़्यादा सिग्नल अगर कैरी नहीं कर पा रहा है, स्लो हो जा रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो मैक्सिमम पीक जो है उसी को सिलेक्ट करेंगे। तो ये क्या करेगा, आप इसको पीक डिटेक्ट में चले जाइए। देखिए सिग्नल थोड़ा सा मोटा हो गया, नॉइजी हो गया, बट वो क्या करेगा, ओनली पीक वाला ही वैल्यू देगा। तो ये सबका उतना ज़रूरत नहीं पड़ेगा आप लोगों के लिए। डिस्प्ले में ज़्यादा कुछ है नहीं, मतलब इसका ये जो परसिस्टेंस, मतलब इसका कलर का ब्राइटनेस वगैरह ये सब बढ़ा सकते हैं, ग्रेटिट्यूड का ये कलर है, ये सब चेंज कर सकते हैं। सो डोंट नीड टू चेंज दोज थिंग्स। ओके, सेव रिकॉल मीन्स आप इस चीज़ को पेन ड्राइव में सेव करना चाहते हैं तो आप पेन ड्राइव लगा के उसमें सेव कर सकते हैं। यूटिलिटी में जाए, पेन ड्राइव कहाँ पे है? पीछे पेन ड्राइव लगाने के लिए हाँ। राइट। सो मैं जो प्रो कंपेंसेशंस बोल रहा था, देखिए यहाँ पे प्रो कंपेंसेशंस लिखा हुआ है। अगर प्रो में कभी प्रॉब्लम आता है तो जनरली 1 kHz पे एक स्क्वायर वेव का दिया हुआ है, तो यहाँ पे जाके आप प्रो को सेट टू डिफॉल्ट करेंगे। वाला ना? हाँ, मैं कितना तो कंपेंसेट करना है कैसे पता चलेगा? वो आपको घुमाएंगे ना इससे, मैं उसको दिखा दूंगा प्रोब को, तो आपको वहाँ पे प्योर स्क्वायर आना चाहिए, वो आपको दिखेगा। ठीक है, नाउ ये सब टाइम डेट चेंज करना है, फाइल यूटिलिटीज ये सब के लिए है। ओके, ये मैथ्स हो गया। अगर आपको ये टाइम डोमेन, जनरली ये क्या होता है, टाइम डोमेन सिग्नल ऑसिलोस्कोप में, मतलब यू कैन सी द सिग्नल इन रेस्पेक्ट टू टाइम। नाउ आपको उसको इफेक्टी करके फ्रीक्वेंसी डोमेन में जाना है। सो आप मैथ्स पे आ जाइए, यहाँ पे FFT है, मतलब दो सिग्नल को ऐड प्लस भी कर सकता है। यहाँ पे जाएंगे तो सोर्स 1 सोर्स 2 को प्लस माइनस मल्टीप्लाई, दो सिग्नल को मल्टीप्लाई करके इसका जो सिग्नल ये रेड कलर का है, 2 सोर्स में लिखकर दिखाया है ना, हाँ। 4 सोर्स यहाँ पे चैनल है। नहीं, 2 सोर्स का ही दिखाएगा, ओनली 2 सिग्नल को आप ऐड प्लस माइनस कर सकते हैं। 4 का नहीं कर सकते? नहीं, 4 करना। ओके, ठीक है। नाउ FFT आप करेंगे तो आप जिस चैनल का FFT करेंगे उसका यहाँ पे FFT सिग्नल दिखा देगा। ये चैनल 1, ठीक है। उसको चेंज भी कर सकते हैं। हाँ, तो आपको जब जिस चैनल पे चाहिए तो उसको आप ऑन भी रखना पड़ेगा उस टाइम पे। इसका टाइम डोमेन में जो सिग्नल होगा वो आपको यहाँ पे दे देगा FFT। ठीक है, नाउ अभी ये काम सबको सही कर रहा है कि नहीं वो मैं चेक करूँगा। सो इसमें क्या है, ऑलरेडी एक स्क्वायर वेव दिया रहता है। यहाँ पे देखिए 2 वोल्ट स्क्वायर वेव का सिग्नल दिया हुआ है। सो ये मैं चैनल 1 के साथ इसको मैं कनेक्ट कर देता हूँ, ग्राउंड है करके आप कुछ नहीं, जस्ट ऑटो सेटअप कर दीजिए।
अच्छा, दूसरा लगा के चैनल हाँ। 2 का ठीक है, सभी का मैं चेक कर लूँगा। तो जो अगर ये ग्राउंड को हमेशा वहीं पर लगाना होगा, कहीं और लगाना? नहीं, ग्राउंड कहीं पे भी आप लगा सकते हैं, ग्राउंड होने से मतलब है। मान लो एक हम कोई बीम का वाइब्रेशन कर रहे हैं, तो वो वहाँ ग्राउंड पे वाला ग्राउंड कहाँ वहाँ लगा पे है, जहाँ पे होगा? जहाँ पे बीम का वहाँ पे देखिए ग्राउंड होगा पॉइंट, आप वहाँ पे लगा दीजिए। अच्छा, पॉइंट मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी बोल रहे हो? हाँ, जहाँ से आपको ग्राउंड मिलता है, समझ नहीं मतलब पाया। ये आप पॉइंट नहीं बोल रहा है मैं, तो मेटल बॉडी होता है ना, हाँ कोई भी मेटल बॉडी हाँ, में कोई लगा। मेटल बॉडी में आप लगा दीजिए। ठीक। इसमें वाइब्रेशन नहीं हो रहा। हाँ, जिससे वाइब्रेशन नहीं होगा। देखो ये एटीनेट यहाँ पे प्रॉब्लम है, तो मेरे को क्या है, तो कंपेंसेशन करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, स्क्रू है क्या अंदर? वो लूज हो रहा था। कैसे हटा दूँ? इधर थोड़ा सा यहाँ पे एटीनेशन प्रॉब्लम है हल्का सा, स्क्रू रहना चाहिए। यूज करना है। स्क्वायर है 2 वोल्ट का। अभी मैं दूसरा भी चेक करता हूँ।
बेल में प्रॉब्लम है ये वाला। इसको रख के थोड़ा और बाकी जो भी थोड़ा चेक कर लो। हाँ सही में ठीक है। ସବୁ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆଗ ଚେକ୍ କରୁଛନ୍ତି। नहीं जो मोबाइल लोग ହଁ ୟାକୁ ସବୁ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ପ୍ରୋ ଗୁଡ଼ାକୁ ସବୁ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ତାପରେ ସବୁ ପ୍ରୋକୁ ସବୁ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ହଁ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ठीक है, मैं प्रोब भी चेक कर लेता हूँ। अच्छा पहले चैनल चेक कर लेता हाँ हूँ। ठीक है, 2 वोल्ट का नहीं आ रहा। 2 वोल्ट का ही आ रहा है। स्केल का ये देखिए कितना है, 50 मिली वोल्ट बेटा, 100 मिली वोल्ट। ठीक है, देखिए डिविजन्स देखिए 1 2 3 4 5 डिविजन्स दिख रहे हैं, हाँ तो वो 4 होगा 2 वोल्ट पे। अच्छा ये इसे मूव क्यों कर रहा। स्टॉप करना। ये तो कंटिन्यूसली सिग्नल जा रहा है ना, हाँ। उसके लिए। पहले अगर में आपको- ऐसे नहीं आ रहा। नहीं नहीं, स्टॉप इसको किया क्या था। करें, आप ट्रिगर पे जाइए। हाँ। मैंने क्या किया था, यहाँ पे ट्रिगर पे सेट कर दिया था, करके आप इसको, स्टॉप कर देना, स्टॉप। ठीक है, ओके ये कंटिन्यूसली ट्रिगर हो रहा है, इसके लिए ये मूव कर रहा है। इसका मतलब ये प्रोब सही है। अभी मैं बाकी सब प्रोब भी चेक कर लेता हूँ। जो भी पेन ड्राइव इसमें डालेंगे वो फॉर्मेटेड रहना चाहिए कि इसमें कुछ फाइल होगा भी तब भी वो राइट करेगा। तभी करेगा, हाँ बट वायरस नहीं होना हाँ, चाहिए। अच्छा, देखिएगा, क्योंकि ये खैर इसमें इंस्ट्रूमेंट में कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि ये विंडो बेस्ड है नहीं। अच्छा बट आपका हो सकता है कि जो फाइल आप लेंगे पेन ड्राइव में वो उसको करप्ट न कर दे। ठीक है, एटीन्यूएट करना पड़ेगा। हाँ तो इससे आप करके देख सकते हैं खुद से। वहाँ पे देखिए स्क्रू होगा, बस उससे घुमाना है। जनरली मैं बता देता हूँ और एक चीज़, ये नहीं करने से भी चलेगा, बिकॉज आप ये देखिए प्रोब का एक्टिवेशन कितना 1x पे है। अब वहीं पे रहने दीजिए अभी। अच्छा और यहाँ पे देखिए ये कितना है, 1 to 10x 10 पे है। है। हाँ अब 1 पे मैं कर दिया, अब देखिए नहीं आया, राइट। अच्छा थोड़ा आ रहा है। थोड़ा है उसको कर हाँ सकते। वो थोड़ा है, और घुमाए होंगे थोड़ा सा, तो उसको आप कर सकते हैं। अच्छा तो ठीक। जनरली अगर ये 1:1 पे है तो इसमें भी आप 1x रखिए। ये 10x है तो आप यहाँ 10 से उसको 10 पे सेट टू 10x, वो एक बार कीजिएगा 10x। जस्ट 10x, ठीक है। अभी यहाँ पे 10x के तो यहाँ पे भी 10x करना हाँ पड़ेगा। 10x करना पड़ेगा। नहीं किया तो कुछ दिक्कत तो नहीं आ रहा, ठीक तो आ रहा है। हाँ 10x में तो ठीक ही आ रहा है, 1x हो गया तब प्रॉब्लम आ रहा था। नहीं यहाँ पे जो 10x रखा तो हाँ। यहाँ पे भी 10x रखना पड़ेगा। नहीं, अगर एटेन्यूएशन का प्रॉब्लम होता है तब आप करिए, प्रॉब्लम होगा ऐसा नहीं है। अच्छा। अगर प्रॉब्लम होता है तो एक होगा कि अगर आपको उसमें 1x है इसमें 10x है, इसलिए हो सकता है प्रॉब्लम हो। ओहो अगर होता है तो आप एटीन्यूएट कर लीजिए, अगर नहीं है तो इट्स ओके। अच्छा ठीक। ठीक है। अब इससे चेंज कर सकते हैं। सपोज आपको 1000 वोल्ट पे जाना है, इलेक्ट्रिकल में जनरली लगता है वो 1 kV 1.5 kV पे जाते हैं, तब इसमें आपका एटीन्यूएशन को चेंज करना रहता है। वो स्केल्स में उसको वो चेंज कर रिफ्रेश होगा ऑटोमेटिक वो चेंज हो जाएगा या रिफ्रेश करना नहीं करना पड़ता है, पहले से सेटिंग कर लेना पड़ता है। 1x करके दबाना है वो प्लेस कर दिया, हो गया, सेट हो गया, कुछ दबाना करने नहीं से है। हो गया ये हाँ। नहीं दबाना है ना। नहीं हो गया। अगर आप सेट करना 10 तो ये 10 हो जाएगा। अच्छा ठीक है। ठीक है, करंट मेज़र करना है, बट डीएसओ में आप करंट मेज़र नहीं कर सकते हैं। तो करंट मेज़र करने के लिए क्या होता है, एक करंट प्रोब आता है, वो प्रोब लगा के आपको इसको करंट में चेंज कर देना रहता है। इससे क्या होता है, जनरली ये वोल्टेज मेजर करता है, बट इट विल मेजर करंट इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज। सपोज आपका जो करंट प्रोब है वो एम्पियर में जाएगा। यस वो क्या करेगा, 1 एम्पियर 1 ओम का 10 ओम का जो रेजिस्टेंस है वो उसका रेजिस्टेंस फैक्टर्स रहता है। सो नाउ आपने यहाँ पे स्केलिंग सेट कर दिया करंट का, यहाँ पे क्या मेजर करना है, वोल्टेज।
ना 1 ओम का है तो इंटू 1 ओम, तो आपका वो करंट मेजर करके देगा। डायरेक्टली करंट नहीं मेजर करता है, बट इन रिस्पेक्ट टू वोल्टेज मेजर करके वोल्टेज को आप करंट में कन्वर्ट करते हैं। सो उसके लिए करंट सोर्स बदल आता है। सो बेसिकली इसका यही फीचर्स है, यही फंक्शंस है ना। आप अगर आपको इसके ऊपर एनालिसिस करना है तो इसको आप स्टॉप कर दीजिए, इसको आप कर्सर लेके आइए, कर्सर को आप सेट कीजिए, ठीक है, सॉरी कर्सर को आप ले जाइए, राइट। आपको कर्सर यहाँ पे आ रहा है। अगर आपको वी कर्सर जो कहाँ था वो, हाँ वी कर्सर एक था, वर्टिकल कर्सर जो था। हाँ मैं ला रहा हूँ धीरे धीरे। देखिए ये पहले क्या, ये 2 कर्सर है, यहाँ पे देखिए फिर से कर्सर 2 है, तो मैं चेंज करूँगा यहाँ पे, राइट। पहले वर्टिकल आ रहा था। नहीं वर्टिकल भी आएगा, इसको मैं कर्सर को फिर चला जाऊँगा तो यहाँ पे वर्टिकल कर्सर आएगा। कर्सर पहले कर्सर आए, पहले ये आया, फिर प्रेस करेंगे वर्टिकल कर्सर भी आया। तो आपको जब जो चाहिए आप उसको सिलेक्ट कीजिए। तो लेवल का है, ठीक है, समझ में आ रहा है ये। फर्स्ट जब कर्सर गए, पहले हॉरिजॉन्टल कर्सर आया, तो यहाँ पे देखिए इधर वाला बोल्ड हुआ है, मतलब ये वाला कर्सर मूव करेगा, हाँ राइट। हो रहा है। अभी मेरे को ये वाला कर्सर मूव कराना है, सपोज मेरे को इस पॉइंट पे मेजर करना है, मैं लेट से मैं यहाँ पे ला दूँ, ठीक है। तो मैं इसको प्रेस किया, ना अगर आपको दोनों करना है एक साथ, दोनों सिलेक्ट करो, ठीक है ना। आपको वर्टिकल में जाना है, फिर से प्रेस कीजिए, ये वर्टिकल में देखिए दोनों सिलेक्ट हुआ है, तो ये दोनों ऊपर एक साथ आ रहा है ना। सपोज आपको इस पॉइंट पे चाहिए, ये मूव हुआ, ठीक है। अभी सपोज इसको चाहिए, ये मूव हुआ, और यहाँ पे ये मेजर कर देगा आपको ना। अब मैं कुछ पैरामीटर सेट कर लेता हूँ, लेट्स से ऑटो सेट मारने से क्या हो रहा है? ऑटो सेट मतलब एक्चुअली क्या होता है, पहले एनालॉग सिग्नल आता था, तो एनालॉग सिग्नल में कितना वोल्ट है, कितना फ्रीक्वेंसी है, किसी को कुछ पता नहीं रहता, तो पहले हम लोग घुमा घुमा के देखते थे भैया किस सिग्नल पे है ना। यहाँ पे ऑटो फंक्शंस में क्या सिस्टम कर दिया है कि ये खुद ही सिग्नल कहाँ पे है, किस पोजीशन में डिटेक्ट कर लेता है। अच्छा, ना डिटेक्ट करके जहाँ पे भी सिग्नल है वो आपको उस पॉइंट पे लेके आके दे देगा। अगर अदरवाइज आपको अगर ऑटो नहीं रहता, आप एक बार वोल्टेज अप डाउन करते, टाइम स्केल को चेंज करते, तब जाके आपको सिग्नल मिलता है। अभी कहाँ पे है वो इजीली फाइंड आउट करने के लिए ऑटो प्रेस कीजिए, आपका सिग्नल जहाँ पे है वो मेजर करके दे देगा, स्क्रीन पे ला देगा। अच्छा, कौन सा मेजर कर रहा है अभी यहाँ पे? अभी मैं हटा रहा हूँ, ये सब हटा देता हूँ। हाँ, तो ये मैं चैनल 1 का कर रहा हूँ। अभी मैं हाँ। मेजर्स पे आता हूँ, मेरे को हाँ। क्या क्या चीज़ चाहिए। लेट्स से ये चाहिए पिक टू पिक, हाँ। देखिए यहाँ पे पिक टू पिक 2 वोल्ट आ गया। नाउ सपोज मेरे को चाहिए एम्पलीट्यूड हाई 1.98 वोल्ट हाई। नाउ लो चाहिए सपोज, तो माइनस लो पे है, ठीक है। तो दोनों को ऐड कीजिए, देखिए 2.04 आ जाएगा, 2.08 सब मिनट्स रहेगा। नाउ मेरे को ये मैं वोल्टेज के रिलेटेड चेंज करा था, मतलब मैं वाई एक्सिस पे करा था। मेरे को ये फ्रीक्वेंसी को शिफ्ट कराना है, तो मैं इस पे आ जाऊँगा। मेरे को फ्रीक्वेंसी चाहिए, लेट से क्या व्हाट फ्रीक्वेंसी है, वन किलो हर्ट्ज पे मेजर। मेरे को इसका राइज टाइम चाहिए, लेट से सो 1.34 1.35 राइज टाइम मेजर करके देगा।
नो सपोज मेरे को ड्यूटी साइकिल चाहिए, जनरली स्क्वायर वेव में ड्यूटी साइकिल्स होते हैं, तो 50% ड्यूटी साइकिल्स स्क्वायर वेव का है, तो इसमें आपको डायरेक्टली मेजर करके दिया जाएगा। ठीक है ना, अभी आपको कोई भी सिग्नल है जहाँ से आपको सिग्नल करना है, सपोज एसी सिग्नल है, एसी का मेजर करना है, तो आप इसको डायरेक्ट अंदर मत घुसाइए और कहीं से वायर निकाल लीजिएगा, उस पर 50 हर्ट्ज पे ही आता है, तो इसको लगा दीजिए, इसको किसी भी ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर दीजिए, यहाँ पे आपको साइनसॉइडल वेव दिख जाएंगे। हेलो सर, अगर हम इस स्केल को जैसे मान लो यहाँ पे एम्पलीफाई करके रखें हैं और यहाँ पे हम वाइब्रेशन देंगे, तो हम वो जो पॉइंट है वो कहाँ पे लगाएंगे? नहीं, उसको नहीं, आप सिर्फ ना इसको लगा दीजिए, इस कहीं पे भी पॉइंट लगा को कहीं भी लगा दीजिए, इसको ग्राउंड के साथ, यहाँ पे भी ग्राउंड रहेगा, उसको कनेक्ट कर दीजिए, करके जस्ट आप इसको ऑटो सेट कर दीजिए, अच्छा। और जो सिग्नल आएगा ना वो आपको मेजर करने लगेगा। आप एक चीज़ कीजिए, एक चीज़ देखिएगा, देख रहे हैं, जैसे जैसे मैं टच कर रहा हूँ, यहाँ पे भी सिग्नल है वो पकड़ लेगा। ठीक है, तो हमारा ऐसा ही काम है कि ऐसे प्लेट वगैरह होगा ना, उसमें लगा के रख उसे देना। लगा के वो वाइब्रेशन चेक करना है वाइब्रेशन उसका। चेक करना है, इसमें आप रन मोड पे रख दीजिए, हाँ, ये रिकॉर्ड करते रहेगा। अबे जी इसको कनेक्ट कैसे करना है यहाँ पे? आपका कैसा है? ऐसे मान लो कैसे plate में- है, कैसे plate plate तो है? हमारा- ठीक है ना, आप इसको यहाँ पे कनेक्ट कर दीजिए, इसको कनेक्ट कर दीजिए, ठीक है, और ग्राउंड को कहीं पे? ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर दीजिए। अच्छा, ठीक है, कोई भी मेटल बॉडी रख के हाँ, heavy करना वाला? चाहिए, इन जनरल प्रैक्टिस करना चाहिए, अच्छा। बिकॉज क्या होता है कि हम लोग का यहाँ पर अर्थिंग सिस्टम हर जगह पर सही नहीं रहता है, हाँ। इंस्ट्रूमेंट से किसी भी कुछ भी हो सकता है, तो ग्राउंड करना जरूरी है। अच्छा, अगर नहीं करेंगे सिग्नल देगा, देखिए मैं जैसे इसमें ठीक है। दिखा रहा हूँ, सपोज मैं इसमें यहाँ पे तो सिग्नल दे रहा है, दे रहा है जैसे यहाँ पे ना, सब दे रहा है। नॉइज़ आ रहा है, अच्छा, ये मैं लगा दूंगा तो ये नॉइज़ हट जाएगा। वो समझ गए। हम्म, अगर हम वाइब्रेशन कर रहे हैं हम्म, तो इसमें लगाएंगे ये वाला, हाँ, ठीक है, यहाँ पे और कुछ। जहाँ पे भी कोई भी सिग्नल आया होगा का जहाँ पे ग्राउंड है वहाँ पे आप कनेक्ट कर दीजिए। अच्छा, देखिए ले भी रहा है। हाँ, वाइब्रेशन देंगे तो वो चेंज होगा जी। वैसे ग्राउंड गोटे लुहा कजब है करते हैं। एटा एटा काम थोड़ा इधर करिए ना, इसको ऊपर रखिए, यहाँ पे भी कर देता हूँ, तो ग्राउंड है यहाँ पे ऑलरेडी, इंस्ट्रूमेंट का तो ग्राउंड है। करिए फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी वेरी हो रहा है, ठीक है। ठीक। सो नाउ सिंपल है, प्लग एंड प्ले है, इंस्ट्रूमेंट में कुछ नहीं है, जैसे भी मन करे आप खेलिए घुमाए, कुछ नहीं होगा। अगर कुछ होता है, सपोज सेटिंग्स वगैरह चेंज हो गया, कुछ मत कीजिए, डिफ़ॉल्ट प्रेस कीजिए, अच्छा, ऑटोमेटिकली फैक्ट्री रीसेट पे ही चला जाएगा। अच्छा, और जो डाटा वाटा होगा वो सब? हाँ, सब जैसे है वैसे ही रहेगा। अच्छा, डाटा रहेगा। ये जो सेटिंग्स है वो पूरा एकदम फैक्ट्री रीसेट, मतलब जिस सेटिंग में था, स्टार्टिंग जब भी कभी आता है ना जनरल सिग्नल इस सेटिंग्स पे रहते हैं, तो वो आ गया, तो आपको पता भी चला था कि एटेन्यूएशन है, थोड़ा अटेंशन है। क्योंकि अगर- ये भी कितना का है, वन किलो हर्ट्ज हल्का सा है, तो इसको चेंज कर देंगे तो ठीक हो जाएगा। तो अभी ये मैं- वाला थोड़ा चेक कर दीजिए। हाँ, ये मैं वाला अभी सभी प्रोब चेक करता हूँ, है ना, एक एक करके। ये वाला ख़राब था, नहीं, वो पीछे रखा हूँ। ठीक है ना, अभी मैं, कोई नहीं, हाँ हाँ चलिए, कोई नहीं चेंज। तो अभी देखिएगा जैसे नट रहता है ना स्क्रू टाइप का, वैसा होगा। डालना है। तो घुमा लीजिए, ऊपर आ जाएगा। हाँ, 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 ऐसे clockwise घुमा। जोर मोड़ ना, धीरे धीरे जाएंगे। अच्छा,
सैंडविच। हाँ, और थोड़ा सा दैट इज़ द मैक्सिमम। ये मैक्सिमम पे आता एटीन्यूएशन रहता है। टाइप में जो एटीन्यूएशन आ रहा था ना, वो एटीन्यूएशन ले रहे हैं, लेकिन ये क्यों दिखा रहा है? दैट इज़ ए डिजिटल सिग्नल। अच्छा। ये एनालॉग सिग्नल को क्या करता है, एनालॉग टू डिजिटल में कन्वर्ट करता है। ना वो डिजिटल सिग्नल को डिफरेंट जो डिजिटल सिग्नल मतलब क्या है, आपका 1 मिनट में कितना सिग्नल लेगा, जितना ज़्यादा सैम्पलिंग रेट होगा उतना प्योर सिग्नल आपको मिलेगा। हायर द सैम्पलिंग रेट, हायर द सैम्पलिंग रेट होने के साथ साथ आपको उतना रिकॉर्ड लेंथ भी होना पड़ेगा, साइज, तभी वो एक्चुअल जो सिग्नल है उसको रिकन्फिगर कर पाएगा, अदरवाइज नहीं कर पाता है। तो ये जैसे 1 गिगा सैम्पल, अगर ये 5 गिगा सैम्पल का होता, 100 मेगा पॉइंट्स इतना अगर रिकॉर्ड नहीं होता, ये सिग्नल और फाइन आपको मिलता है। इट्स क्लोज टू एनालॉग होता है। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ ये टाइट करने से क्या हो रहा है, फिजिकल क्या हो रहा है? टाइट फिजिकल नहीं, फिजिकल वहीं पे स्टे करेगा और कुछ नहीं होगा। देखिए लॉक हो गया होगा। मतलब ये टाइट क्यों करते, मतलब एटीन्यूएशन में करते हैं पता है, हाँ, लेकिन ये टाइट ही क्यों करना रहता है? लाइट करना नहीं रहता, तो घुमाना क्यों होता है? प्लस आपको एंटी क्लॉकवाइज जाना रहेगा या क्लॉकवाइज जाना रहेगा, घुमाना रहेगा। नाउ क्या है, ये सिग्नल को ठीक ठाक रीड कर रहा है, जो रीड नहीं कर पा रहा है, हाँ। क्योंकि इसके अंदर काफ़ी कैपेसिटर्स वगैरह, इंडक्टर्स वगैरह अच्छा। है जो सिग्नल को कंट्रोल करता है। नाउ कैपेसिटर्स का क्या है, बहुत सारे कैपेसिटर्स आपको पता है कि जैसी चार्जिंग होता है वो कैरी करके रखता है डिस्चार्ज, तो उसको ठीक करने के लिए वो एटोनेशन किया जाता है। ठीक है। जूम, देखिए जूम फैसिलिटी है, दिस वन जूम राइट। नाउ सपोज आपको इस सिग्नल पे दिखना है जूम करके, तो ये जो सिग्नल है ये आपको यहाँ पे दिखा रहा है। एक्चुअली दिस इज़ नॉट अ प्योर स्क्वायर, कितना नॉइज़ है वो आपको यहाँ पे पता चलता है। नाउ यू सेट कर्सर, अब कर्सर को लाइए इस पॉइंट पे लाइए, तो आपको एक्चुअली दिखेगा कि एक्चुअली क्या है यहाँ पे, कितना का एरर है। ये डेल्टा 1.72 थी, इसका दिखा है कि इतना वहाँ पे एरर है। तो ये क्या जूम करने से ये फैसिलिटीज़ आपको पता चल रही है कि आप बहुत टाइम पे फ्लिकर्स आ जाते हैं, कंटिन्यूसली सिग्नल आपको पता नहीं चल रहा है, तो आप उसको रन मोड पे जाके स्टॉप कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे जूम में लाइए, जूम लाइए, कर्सर रखिए, क्या वैल्यूज़ है यहाँ पे आपको दे देंगे। ठीक तो है, वोल्ट के हिसाब से देगा। हाँ, मतलब जो सिग्नल का सब जो वोल्टेज। ये रहेगा, एक्स एक्सिस में आपको टाइम का देगा, वाई एक्सिस में आपका एम्पलीट्यूड वोल्टेज में देगा। मैं इसको मैं ऑफ करता हूँ और आप खुद से चला के देखिए, ठीक है। यहाँ पे मैं देखूँगा, कुछ भी प्रॉब्लम होगा, अच्छा ठीक कर लेता हूँ पहले ना सब। एक जो काम नहीं करा था ना, कभी कभी बहुत सारा ये रहता है आपका, सिग्नल्स आते हैं, फ्लिकर्स आ जाते हैं, जो आपको डिटेक्ट करना है, उस टाइम पे वो ट्रिगर होना ज़रूरी रहता है। तो आपको पता है कि सपोज़ आपका जो सिग्नल आ रहा है उसका राइज टाइम आपको पता है कि इतना राइज टाइम, तो आप ट्रिगर डिफरेंट वे से कर सकते हैं कि जैसे ही वो ग्लिच आएगा ये कैप्चर इसमें होना चाहिए। अच्छा। तो यहाँ पे जैसे आप ट्रिगर जाएंगे, ये हमारा जो है ऑटो ट्रिगर है, ये जितना भी काम ऑटो ट्रिगर मोड पे आ रहा है। तो ऑटो ट्रिगर मोड पे क्या, ये जितना भी ट्रिगर है सब डिटेक्ट करता है, काफ़ी टाइम लगता है। नाउ यू हैव अ डिफाइंड ट्रिगरिंग ऑप्शन, आपको पता है कि इतना राइज टाइम या इतना एज पे एक सिग्नल आने वाला है, आप पहले से इसको सेट कर सकते हैं यहाँ पे जाकर। तो टाइप ऑफ ट्रिगर यहाँ पे एज ट्रिगर, डिले, पल्स विद वीडियो, ये सब एज ट्रिगर सब दिया हुआ है। जो तो राइस टाइम जो बोले वो काम आ रहे हैं धीरे-धीरे। ये है, ये देखिए स्लोप है, स्लोप है। हाँ। सो यहाँ पे देखिए राइज टाइम, पल्स टाइम स्लोप पे ही रहता है। अच्छा हाँ। तो यहाँ पे होल 4 नैनो सेकेंड्स पे है, तो यहाँ से आप ये सब चीज़ को चेंज कर सकते हैं ना। आपको पता है कि कितना सेकेंड्स में वो ग्लिचेस आ रहा है, हाँ। तो वो डिटेक्ट करना, उस टाइम पे ये ट्रिगर हो जाएगा सिग्नल, मतलब इसके बाद और जो सिग्नल आएगा वो दिखेगा नहीं।
उस सिग्नल पे ट्रिगर हो गया, तो ये वहाँ पे offset स्टॉप हो गया। हाँ वहाँ पे स्टॉप हो गया, आप एनालिसिस कर लिए, फिर आप रन करा दीजिए, अच्छा, नहीं तो आप कर नहीं पाएंगे ना, वो पता कैसे चलेगा जो बोल रहे हैं? तो खुद पकड़ लेगा। तो यहाँ पे सेट कर दिए, हाँ। इतना पे जैसे ही सिग्नल आएगा वो स्टॉप हो जाएगा। अच्छा, तो राइस टाइम हमको पहले से पता होना चाहिए हाँ कि वो इस सब हिसाब सिग्नल से, का राइस टाइम इतना होना चाहिए, फॉल टाइम इतना होना चाहिए, तो ऑटोमेटिकली वो कैप्चर करेगा वो ऑटोमेटिकली वैसे हिसाब से कैप्चर वो करेगा। क्या कैप्चर करेगा? ये सिग्नल को सपोज अच्छा। आपको ग्लिच आया, हाँ, आपको ग्लिच आया 1.2, उस ग्लिच का राइस टाइम आप पकड़ लीजिए कितना है, 1.7 मिली सेकेंड या नैनो सेकेंड है। हाँ, तो अगर आप इसको नहीं रखते, अगर उस सेटिंग पे नहीं है तो उस सिग्नल को दिखेगा नहीं, वो पास कर जाएगा। पास कर जाएगा। आपने वहाँ पे पहले से इसको सेट कर दिया कि भैया 1.74 पे जो ये आ रहा है, ग्लिच आ रहा है, उसको कैप्चर करना है, तो जैसे ही वो ग्लिच आएगा ये ऑटोमेटिकली वो ट्रिगर हो जाएगा, मतलब सिग्नल ट्रिगर कर दिया। हाँ है ना? ओके। पहले एक बार चेक कर लेता है ना, हाँ। देयर इज अ न्यू वन, एक बार चेक करके फिर उसके बाद इसको रिकॉर्डिंग में करते हैं। वे रिकॉर्डिंग कर रहा है। चलिए कुछ नहीं, मैं फिर से स्टार्ट करता हूँ लेट से। सो दिस इज अवेलेबल इन द ऑप्शन बटन, राइट? प्रेस द ऑप्शन बटन, यू विल हैव दिस वेब फॉर्म। तो आपको साइन, ये साइन वेब फॉर्म हो गया, स्क्वायर हो गया, सो यू कैन चेंज द वेब फॉर्म फ्रॉम बाय सेलेक्टिंग दिस, राइट? सो सपोज स्क्वायर हम लोग ने इसमें देख लिया है, सो नाउ वी आर सेलेक्टिंग साइन। अभी सेलेक्ट करने के बाद विल गो टू द वेब फॉर्म सेटिंग्स। वेवफॉर्म सेटिंग्स में आपको फ्रीक्वेंसी कितना पे चाहिए, 1 किलो हर्ट्ज, 10 किलो हर्ट्ज, 100 किलो हर्ट्ज। सो यू सेलेक्ट द फ्रीक्वेंसी फ्रॉम दिस रोटेटरी नॉब. This is a user friendly, this user defined frequency, means you can set as per your requirement. So I am setting it at 100 kilohertz. Okay. Amplitude again you can select the amplitude. Oh, sorry. Please go to 3.5 3.5, 4.5. upper limit. 0.5 to 4.5. 2.5. Okay. So let's say I am selecting 2.5 volt. Right? Now it's not yet. Okay, fine. Right. Shoot on. Okay. Start from 100 hertz to 100 kilohertz. So now you change the scale. So starting from 100 to goes up to 100 kilohertz, generating this sinusoidal signal. Okay. So now suppose you want to generate a square wave. It's not what amplitude is varying. It's not amplitude is varying, it's a time scale is varying. It's a varying so fast, it's look like the amplitude is also varying. As you see, it's a frequency from 100 kilohertz to 10 hertz, 10 hertz to 100 hertz to 100 kilohertz. It goes up to. Option. If you Just want to stop see it. the This is not signing up. these are the modulations. I have placed these modulations now. I am just 100 hertz. Okay. Further. Fine. So I think I need to press something from here. Output setup. Gen 1. Output on.
So see, this is the amplitude modulations, right? So it's a carrier frequency of 100 Hz is applied into the 1 kHz signal. So it's amplitude modulations. Okay. So let's say Gen 1 setup. Remove the amplitude modulations off, or it go to the this ear modulation frequency modulations. It's a 100 Hz, 100 Hz frequency deviations. Let's say it's a 10. So 10. Modulations. Okay. Modulations and open. It's okay. It's a frequency modulation, right? Okay, at this point, if we switch out the modulus, So it We'll will get say the- right. It will show. can we Modulation of, right? modulus now? Then one second. Yeah. So that time actually I didn't on the output. It is output is in off mode. That's why those noises were there. Beautiful. So now I can generate. We can capture this now. Yeah. Also. Yes. So we don't need to install that one, only that application file will open it. Channel 1. Okay. Continuous capture whatever it is. It's capturing. Save. Save. Continuous capture means continue capturing. Continuous capture. At a certain moment time, it will capture this. One channel 2 from there, automatically channel 2. And it will show. Okay. Channel 3 is not. Okay. But you cannot control, right? Means if you want to change the time scale division, voltage scale division. Only in this machine we can do it. This can be done in the higher end oscilloscope, Okay. where you have to buy a separate software, through which you can also control the Machine. machine from the PC also. I gone out. ऑप्शन मेनू में आने के बाद यूट्यूब चेक AWG. Okay, so in AWG setup, it's a waveform, arbitrary waveform. Edit waveform modulations जो आपको करना है, आप edit पे आइए,
क्रिएट न्यू लोड, अगर आपके पास है वो लोड कीजिए, नहीं तो क्रिएट न्यू कीजिए। लोड यहाँ से हो जाएगा? आई थिंक हो जाना चाहिए, मैं देखता हूँ। एकदम बोलो लोड यहाँ पे अगर हो जाएगा तो हम लोग वेल एंड गुड। यहाँ पे लोड वेबफॉर्म किया फ्रॉम फाइल, जो अब्दुल्ला का जो इसमें चल रहा है वो सेव डिस्क DS001 वन नाम একটা আছে 001.uaw। कहाँ पे है इसमें कहाँ इंस्टॉल कर दिया सीधा को डाउनलोड्स में ही होगा सर। डाउनलोड्स में यस ये DS001 और एक है DS001 this ये तो एक्सेल है ना, अब CSV फाइल नहीं है ना। एक्शन है। Concept to digitally run। हाँ, नहीं मतलब कर दीजिए अभी आप जैसे बोलेंगे अकाउंट में अकाउंट नंबर दे दीजिए, बात कर लेंगे ये दे दीजिए अकाउंट नंबर उसमें बिल में लिख दीजिए ठीक है। जो डिस्क दिखा रहा है वो डिस्क कहाँ का लोकेशन है वो पता करना पड़ेगा। General setup। क्रिएट न्यू करता हूँ, लेट्स से क्रिएट न्यू, इतना कंटिन्यूस फॉर्म्स नहीं कर सकता। अभी पॉज कर कुछ बाद में ये पॉज कर